السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اکرام اللہ جوئی اور آج دفتر میں موجود ہیں آپ کے ساتھ سپریم کورٹ کے حوالے سے انتہائی اہم ترین ایک کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آج شیئر کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سبین شہباز جو سپریم کورٹ کی بیٹ کر رہی ہیں اور آج سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا ہے جس کی تفصیلات جو ہیں وہ آج سبین شہباز سے پوچھیں گے. خواتین کے حقوق کے بارے میں ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے، تو یہ آج خواتین سے متعلق ہی ایک کیس تھا جس کا فیصلہ جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں سنایا گیا ہے، جس میں ایک خاتون ہے، ان کے ہسبینڈ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے جو ہے وہ بچہ نہیں ہو سکتا. انفرٹائل جس کو کہا جاتا ہے اردو میں جو اصطلاح ہے، بانجھ پن کی جو بات کی جاتی ہے، اس حوالے سے وہ الزامات لگائے گئے. 10 سال کا یہ کیس تھا، انتہائی اہم ترین یہ کیس ہے. اس میں فیصلہ کیا سنایا گیا ہے اس کی تفصیلات آج سبین شہباز سے ہم پوچھیں گے اور اس کے بارے میں اس کے اثرات جو ہیں معاشرے پر کیا ہوں گے اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے گی. سب سے پہلے سبین آپ کے وقت کا شکریہ. سبین یہ بتائیں کیس کیا تھا اور کتنے عرصے سے یہ کیس چل رہا تھا اور اس میں ابھی جو فیصلہ آیا اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں. اکرام، یہ ایک درخواست گزار تھے، صالح محمد ان کا نام تھا. انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی. شاید کہ پہلے قانون میں کوئی ایسی چیز مینشن تھی کہ جو خاتون بانجھ ہو اس پہ مہر ہوتا ہے زنانہ نفقہ، وہ خاتون کو آپ دے نہیں سکتے یا خاتون سے واپس آرام سے لے سکتے ہیں. یہ کیس شاید تھا اور یہ کہ سپریم کورٹ میں آیا تھا. تقریباً 10 سال جو آپ نے بتایا کہ 10 سال سے زیادہ کیس چلا ہے. چیف جسٹس جعفری نے وہ درخواست بھی مسترد کی. ایک بڑا اچھا امپیکٹ گیا چیف جسٹس کی جانب سے. کیس میں صرف میں آپ کی بات روک رہا ہوں، کیس میں صرف حق مہر تھا یا اس میں وہ نان نفقہ اور پراپرٹی جو ہے وہ بھی اس میں؟ ہاں، نان نفقہ، پراپرٹی سب کچھ تھا. چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا اور اس فیصلے میں انہوں نے چیزیں بڑی بہترین طریقے سے جو ہے وہ ان کو ایکسپلین کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بڑا کلیئر پیغام دیا ہے کہ اس وقت میں کوئی بھی خاتون کمزور نہیں ہے. معاشرے میں انفارچونیٹلی خواتین کو بڑا کمزور کنسیڈر کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ خاتون ہے، بول نہیں سکتی، کمزور ہے. تو لیکن قانون پورا خواتین کے ساتھ ہے. یہ صالح محمد تھے، نہ صرف ان کی درخواست خارج ہوئی ہے بلکہ درخواست خارج ہونے کے ساتھ الٹا ان پہ 5 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا. اور چیف جسٹس کیا لکھی گئی ہیں 5 لاکھ کا جو جرمانہ ہوا ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل. چیف جسٹس صاحب نے اپنے اس فیصلے میں یہ کہا ہے کہ خواتین کے حقوق پر ڈاکہ کسی صورت قبول نہیں ہوگا. اور عورتیں اس وقت کے جو معاشرہ ہے، اس وقت کا جو ٹائم چل رہا ہے، اب کا زمانہ چل رہا ہے، اس میں عورت جو ہے وہ کسی صورت کمزور نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب کے فیصلے میں کہہ رہے ہیں کہ بانجھ پن، حق مہر یا نان نفقہ روکنے کی وجہ نہیں ہو سکتی اور خواتین پر ذاتی حملے عدالت میں کسی صورت برداشت نہیں ہوں گے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اس قسم کے ریمارکس آئے، اس قسم کے فیصلے میں جو ہے اس قسم کی چیزیں مینشن کی گئی. اس سے پہلے بھی کئی فیصلوں کی ایسی ایگزامپلز موجود ہیں جس میں چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں. یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے اس فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ خواتین پر ذاتی حملے عدالت میں برداشت نہیں ہوں گے اور شوہر نے بیوی کو والدین کے گھر چھوڑ کر دوسری شادی کی. تو پہلی بیوی کی حق مہر اور نان نفقہ سے انکار کیا گیا تھا دوسری شادی کرنے کے بعد. اور پھر یہ ہے کہ عورت کی عزت نفس ہر حال میں محفوظ ہونی چاہیے. خواتین کی تہذیب معاشرتی تعصب جو ہے اس کو فروغ دیتی ہے. اور جو بیوی کے میڈیکل رپورٹس ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں جو شوہر کے وکیل تھے انہوں نے دی تھی اور پھر جو خاتون کے وکیل تھے انہوں نے بھی جا کے میڈیکل رپورٹس دی تھی. تو یہ بھی کہا ہے کہ خاتون کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں اس سے جو شوہر کے تمام جو الزامات ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. تو ایک تو غلط بیانی پہ آپ اس کو کہہ لیجیے کہ انہوں نے عدالت میں غلط بیانی کی ہے جس وجہ سے جرمانہ جو ہے ان پر کیا گیا ہے. اور یہ کہا ہے کہ خواتین کے خاتون بانجھ نہیں تھی، نہیں، وہ خاتون بانجھ. اب یہ تو پھر میڈیکل رپورٹس ہم نے دیکھی نہیں ہے، جب اگر دیکھتے تو یقیناً پتہ چل جاتا. لیکن اس میں چیف جسٹس نے فیصلے میں کہا ہے کہ خواتین کے حقوق کا جو تحفظ ہے وہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے. تو موجودہ عدلیہ جو ہے یہ خواتین کے جو تحفظ ہے اس کی موجودہ عدلیہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ موجودہ عدلیہ اس طرح سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن موجودہ عدلیہ میں بھی دھڑ بندی ہے نا. تو کچھ لوگ ہیں شاید کہ جو دھڑ بندی کی بات ہم بعد میں کریں گے. سوال سے سوال نکل آیا اور یہ بات ڈسکشن ٹاپک پہ بھی چلے گی. ابھی ہم خواتین کے معاملے کے اس کیس پہ ہی فوکس کرتے ہیں. تو دیکھیں سبین، یہ بڑا ایک خوش آئند قسم کا جو ہے وہ ایک فیصلہ ہے جو آج ہم نے یہ فیصلہ دیکھا تو اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ انفارمیشن جب آئی تو بڑا انٹرسٹڈ اس لیے لگا کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ بات کرنا اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ان تمام خواتین کے لیے میرے خیال مشعل راہ بھی ہوگا جو اس مسائل میں سے گزر رہی ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے کیسز جو ہیں وہ باقی بھی عدالتوں میں، لوور کورٹس میں بھی موجود ہوں گے. اس فیصلے کی تھوڑی سی مزید ڈیٹیل بتائیے گا اور اس کا امپیکٹ بتائیے گا کہ کیا ہوگا. اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر ایک عورت کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ مرد کے نصیب کی ہوتی ہے. تو جہاں پر اگر کسی لیٹ سپوز کہ کسی خاتون کو اولاد نہیں ہے تو یا تو مرد کی دوسری شادی کرا دی جاتی ہے یا جو مرد ہے وہ عورت کو طلاق دے دیتا ہے. تو اس فیصلے کے بعد میرا خیال ہے کہ اس چیز پر تھوڑا سا کنٹرول آئے گا.
मर्दों को पता चलेगा कि अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद, इससे पहले तक फैसला इस किस्म का कोई फैसला मौजूद नहीं था। अब ये फैसला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो एक तो शौहर जो हक महर है वापस नहीं ले सकता, नाना नुफ्का प्रॉपर्टी कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं ले सकता। अगर ऐसा कोई शौहर कोई ऐसा वो जो हकूक है वो देने पड़ेंगे। और अगर ऐसा कोई कदम उठाता है तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में खातून उस पर केस भी कर सकती है। और फिर उस केस में इस शख्स पे तो, क्योंकि ये मेन पिटिशनर था, तो इस शख्स पे तो 5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। लेकिन अगर मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता ऐसा कोई शख्स कोई कदम उठाता है तो फिर उस पर जो है वो एक तो जुर्माना बहुत हैवी पड़ेगा, दूसरा ये है कि उसको सजा भी जो है वो होगी। तो ये 42 सफ़हात का 7 सफ़हात का ये फैसला है जो चीफ जस्टिस साहब ने लिखा है। और इस फैसले में खवातीन, मैंने ये फैसला पूरा पढ़ा है और मैं तो मशवरा ये दूंगी आपके जो व्यूअर्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आज ही की डेट में ये फैसला पढ़ा है, 23 कल की डेट में ये फैसला पढ़ा है, तो उस वेबसाइट पर जाकर लाजमी पढ़े। 7 सफ़हात का फैसला है, 5 सफ़ों पर ये जजमेंट है, 2 सफ़हात पर डिटेल्स होती हैं, 5 सफ़हात पर ये जजमेंट है। तो लाजमी जाकर यह फैसला पढ़े, जितनी भी खवातीन हैं वो ये फैसला पढ़े। तो मेरा ख्याल है कि उनको कॉन्फिडेंट खवातीन जो है उनमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अब खवातीन महफूज और अपने हक के लिए बोलना जो है वो खवातीन को भी, क्योंकि जब चीफ जस्टिस एक बात ही कह रहा है कि इस माशरे में अब कोई भी खातून जो है वो कमजोर नहीं है और खातून के हकूक की जो प्रोटेक्शन है वो करना काम है। क्योंकि खवातीन का आपको पता ही है कि आजकल किस किस किस्म के वाक़यात जो है वो हो रहे हैं। अभी एक हफ्ता भी शायद बलूचिस्तान का एक वाक़या आपके सामने है। तो होपफुली, क्योंकि चीफ जस्टिस खुद भी बलूचिस्तान से हैं, तो होपफुली कि जब वापस आएँ तो इस केस का कोई उस इस्लामाबाद में नहीं है, लेकिन जब वापस आएँ तो हो सकता है कि बलूचिस्तान वाले मामले पर भी वो कोई एक्शन जो है वो लें। एक्शन वैसे लेना बहुत ज़रूरी है और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, मुआशरे में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। दूसरी जानिब बात तो ये मुकम्मल होगी, व्यूअर्स हमारे जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे थे, सबीन शहबाज बता रही थी, उसका छोटा सा मुख्तसर खुलासा दोबारा से आपके साथ सामने रखता हूँ कि ये एक केस था जो 10 साल चलता रहा। उसमें मर्द की जानिब से कहा गया कि उसकी जो बीवी है वो बांझ है, अनफर्टाइल है, जिसके बाद जो है उसने दूसरी शादी भी कर ली और अपनी जो पहली बीवी है उसको अपने माँ बाप के घर जो है वो भेज दिया। और ये 10 साल तक उस औरत को ये अजियत झेलना पड़ी है और कोर्ट्स में ये बात चलती रही कि जो खातून है वो बांझ है, वो अनफर्टाइल है और ये उसको फेस करना 10 साल कोई छोटी उम्र नहीं है। 10 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हुआ है कि औरत की तजलील जो है वो कभी भी नहीं की जा सकती। जो पुरानी तजलील हो चुकी, सवाल निशान है कि उसका क्या बनेगा, क्या उसको रिलीफ मिलेगा या उसको जो है वो कम से कम एक ऐसा कॉन्फिडेंस तो मिलेगा बाकी खवातीन को जिनके साथ ऐसा वाक़या पेश आ रहा हो या वो ऐसी ही सिचुएशन से अगर गुजर रही हैं, उनके लिए बड़ा खुशाइंद ये फैसला है कि आपके हकूक़ आज भी महफूज हैं। सिर्फ बात यह है कि आपके हकूक़ आपको देर सवेर से मिल सकते हैं। 10 साल इनको लगे हैं, खुदा न खास्ता आपको भी 10 साल ना लगे, हमारी यही दुआ है और आपके मसाइल ये हल हों। दूसरी जानिब जो है वो रिपोर्ट्स मेडिकल पेश की गई हैं जिसमें ये कहा गया कि इन मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो खातून के ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं जिसमें अनफर्टाइल उसको कहा गया, ये गलत है। इस पर अदालत जो है वो बरहम भी हुई कि खातून पर जो है वो आपने अनफर्टाइल यानी कि बांझपन के इल्ज़ामात आयद किए और 10 साल उसने उस अजियत में गुजारे। तो ये बहुत एक अफसोसनाक वाक़या है और ये बहुत एक अफसोसनाक केस भी है। तो अदालत की जानिब से ये जो रिमार्क्स हैं, ये रिमार्क्स मुआशरे के लिए इस्लाह के तौर पर भी हैं और मुआशरे में ख़वातीन पर ऐसे इल्ज़ामात आयद करना और उनको ये कहना कि अनफर्टाइल है और वो उस कर्ब में, उस अजियत में 10 साल गुजारे, ये भी बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। और इसके साथ साथ ये जो फ़ैसला है आपकी ज़िंदगियों पर भी बड़ा असरअंदाज हो सकता है। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो आप बिल्कुल सबीन जैसे बता रही थी कि आप वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है वो इसे विज़िट कर सकते हैं और ये जो फ़ैसला है उसको पढ़ भी सकते हैं, उसको कोट भी कर सकते हैं, अपने किसी भी किस्म के इशू में जो है इसको एक मिसाल या दलील के तौर पर जो है वो पेश भी कर सकते हैं। अब ये तफसीली तौर पर आपके साथ इस केस के बारे में तफसीलात लिखी जो है वो शेयर की हैं सबीन शहबाज ने। अब थोड़ा सा दौरान गुफ्तगू हमारी बात चल रही थी तो सबीन की जानिब से एक जुमला निकला जिसको मैंने पिक किया है, तो अभी हम उसकी ज़रा तफसील में जानेंगे, गहराई में जाएंगे और तफसील से हम बाल की खाल जो है वो उतारने की कोशिश करेंगे। सबीन, आप बातों बातों में सच एक बोल गई हैं कि मौजूदा दौर जो सुप्रीम कोर्ट का है या अदलिया जो पहले थी, फ़र्क क्या महसूस हो रहा है 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सुप्रीम कोर्ट और 26वीं आईनी तरमीम से पहले की एक बंदयाल की एक अदालत थी, उसके बाद काजी फायज़ ईसा की एक अदालत थी और एक अब अदालत है?
कैसे दिखाई दे रही है? 26वीं तरमीम का जिक्र आपने बिल्कुल दुरुस्त किया कि ये इस वक्त जितना भी मैस सुप्रीम कोर्ट पे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप कोई भी कोर्ट उठा, इस्लामाबाद की दोनों अदालतें देख लें, सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट आप उठाकर देख लें, 26वीं तरमीम ने बहुत मुतासिर किया है दोनों अदालतों को। सुप्रीम कोर्ट, हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए, आप हाई कोर्ट कह लीजिए। हाई कोर्ट में आपके सामने है कि वही जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि सीनियरिटी के हिसाब से नंबर मंसूर अली शाह साहब का बनता था, लेकिन 26वीं तरमीम जबरदस्ती पास करवा कर, और किस तरह पास हुई आपने तो सुबह तक कवर किया था, आपको पता होगा कि 26वीं तरमीम जबरदस्ती पास कराकर काजी फजीसा के बाद जबरदस्ती जो चार्ज है वो याह्या अफरीदी साहब को दिलवाया गया। वो अब वो चीफ जस्टिस बन गए, लेकिन वो सिर्फ कागजी तौर पर चीफ जस्टिस है, वो कहने को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है, लेकिन आईनी अदालत फिर कायम की गई। आईनी अदालत में तमाम इख्तियार चीफ जस्टिस से जब भाई 100 मोटो तक का इख्तियार आप चीफ जस्टिस से ले चुके, तो उसके पीछे फिर क्या रह गया चीफ जस्टिस के पास? अदालतों में जो फैसले हो रहे हैं उनको कैसे देख रही है अवाम का जो ट्रस्ट है, क्या अब जो उनकी क्या पोजीशन है? इस वक्त में जो हमारी अदालतें चल रही हैं, अब मेजॉरिटी अवाम जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं केसेस को, जो रेगुलर देख रहे हैं, मैं आपको गिनवा सकती हूँ कि कितने केसेस ऐसे थे कि जिसमें लोगों को पहले से पता था। मैंने ट्वीट देखे, मेरे अपने ट्विटर पे ऐसे लोगों ने मुझे मेंशन किया कि भाई उनको पता था कि फैसला क्या आएगा, और उनको ये भी पता है कि किस मेजॉरिटी से फैसला आएगा, 5-3 से आएगा, 5-2 से आएगा, ये फैसले भी लोगों को पता थे। तो अब हमारी 26वीं तरमीम ने हमारी अदलिया को 2 धड़ों में, अगर अदलिया थी तो उसको 6 धड़ों में तकसीम किया। आनी तरमीम के बाद मंसूर अली शाह साहब और काजी फैसल साहब का पहली क्लैश आपके दौर में भी चल रहा था, जब 26वीं तरमीम पास हुई तो वो क्लैश और बड़ा। वो के चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं वो गए, और उसके बाद फिर याह्या अफरीदी साहब आए, लेकिन याह्या अफरीदी साहब के बाद फिर मंसूर अली शाह साहब और याह्या अफरीदी साहब के दरमियान क्लैश रहा। इस वक्त भी वो क्लैश बरकरार है। गो के याह्या अफरीदी साहब ने शुरू में कोशिश की कि वो पूरी अदलिया को साथ लेकर चलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो किसी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन मामला दोबारा से उसी तरफ जाना शुरू हो गए। उस 26वीं तरमीम के बाद ही जो है वो 26 अमेंडमेंट आईनी अदालत कायम की गई। आईनी अदालत के सामने आपको पता है कि चीफ जस्टिस के पास जो इख्तियारात थे वो इस वक्त आईनी बेंच के सरबरा अमीनुद्दीन खान साहब के पास हैं। चीफ जस्टिस के पास सिर्फ ये है कि वो चीफ जस्टिस है, वो कमेटी के सरबरा हैं, आईनी कमेटी के सरबरा हैं, तो वो जो केसेस हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं कि ये लगा ले, लेकिन वो उनको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि ये केसेस आप लगाएं। ये एग्जांपल होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अब हाई कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को जबरदस्ती लाया गया। कहा यह गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि ये टैक्स मैटर में मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की एक्सपर्टीज है, और एक्सपर्टीज है, ये उनका जुमला था, इनकी एक्सपर्टीज है टैक्स मैटर में। लेकिन आज तक 6 महीने इससे ज्यादा हो रहा है, आज तक मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक टैक्स मैटर नहीं सुना। टैक्स मैटर आईनी अदालत में जाते हैं, आईनी अदालत के सरबराह कौन है? अमीनुद्दीन खान साहब, सारे केसेस वो सुनते हैं। अब हाई कोर्ट देख लें, वहां पर भी ये कुछ है। तो ये सारा कुछ 26 अमेंडमेंट के बाद ही हुआ, जो आपने जिक्र किया ना 26वीं तरमीम, ये सब कुछ उसके बाद की मैस क्रिएट होना शुरू हुआ जब 26वीं तरमीम पास हुई। तो ये इस जड़ तो रख चुके थे, काजी फैसल के दौर में जड़ रखी जा चुकी थी, लेकिन उस जड़ को जड़ जो वो तनावर से भी ऊपर चला गया। ऐसी सारी सिचुएशन में, और इस वक्त जो अदलिया का निज़ाम है उसमें क्या समझ जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है, अब हम इनको बानी चेयरमैन यूट्यूब पे तो कम से कम इमरान खान का नाम कह ही सकते हैं, बाकी अगर नहीं कहते तो खान की रिहाई, बातें बहुत, हर साल एक नया शोशा छोड़ दिया जाता है, हर ईद पे नया शोशा छोड़ दिया जाता है। एक्चुअल ग्राउंड में अगर अदालती निज़ाम को देखते हुए, सेटअप को देखते हुए, इन जजों की इस फैसलों को मद्देनज़र रखते हुए कोई उम्मीद है, या फिर झूठी उम्मीदें दिला के जो है वो व्यूअरशिप ही हासिल की जाती है? झूठी उम्मीदें, आपने कहा झूठी उम्मीदें कौन दिला रहा है? कौन दिला रहा है? आप जवाब दें। हमारे कुछ साफी दोस्त जो हैं वो दिला रहे हैं। साफी नहीं दिला रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत, अच्छा, इंक्लूडिंग देयर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, वो भी दिलवा रहे हैं। बहुत सी क़यादत देखें, उनका तो काम ही है, वो तो कब से हम सुन रहे हैं कि हम निकलवा देंगे। वो अगर नहीं कहेंगे तो फिर उनको उनके वर्कर्स जीने कैसे देंगे? उन्होंने तो वर्कर को आस दिलानी है। हकीकत क्या है? मौजूदा अदलिया, सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, हाई कोर्ट देख रहे हैं, इमरान खान की रिहाई किसी सूरत मुमकिन नहीं है, किसी सूरत भी। आप इमरान खान का कोई केस उठा के देख लें, इमरान खान के केसेस में अदलिया शायद कॉम्प्रोमाइज कर जाए किसी हद तक, लेकिन जब तक इमरान खान की लीगल टीम सीरियस नहीं होगी, आप इमरान खान के कितने केसेस उठा के देख ले, किसी केस में इमरान खान के वकील अवेलेबल नहीं होते, किसी केस में वो आते नहीं है, किसी केस में वो वीडियो लिंक पर आ जाते हैं, किसी केस में उनकी तैयारी नहीं होती, किसी केस में वो कह देते हैं हमें नोटिस, हालांकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस 2-3 दिन पहले जाता है
किसी केस में वो आके कहते हैं जी कि हमारे पास हमें नोटिस नहीं मिला, हमें जब वो समाज का नोटिस कार्ड मिला था तो मुलतवी कर दें, वो फिर मुलतवी करना पड़ती है जज साहब को। क्या करें अब जब आपकी लीगल टीम सीरियस नहीं है, आप जिन्होंने इमरान खान का केस लड़ना है जब वो लोग ही सीरियस नहीं है, तो आप फिर ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान जेल से बाहर होंगे? आने वाले दिनों में अगर तो फिर इसमें ज़मीन ये तो नहीं कहा जा सकता कि अदलिया और उसका मसला है, मसला तो फिर इनका अपना हुआ, इनकी अपनी टीम का हुआ, अदलिया के फैसलों, अदलिया का कसूर भी है। इतनी नॉन सीरियस नहीं, वकला को इस हद तक नॉन सीरियस, वकला की नॉन सीरियसनेस इस हद तक बर्दाश्त करने का क्रेडिट उसके सर जाता है। काजी फैसल साहब भी थे ना, इमरान कोई भी नॉट इवन इमरान खान, कोई भी केस होता था वकला की तैयारी नहीं होती थी, बच्चे खासी क्लास लेते थे। बिल्कुल दुरुस्त है, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त सबीन शहबाज मेरे साथ मौजूद थी, उनकी जानिब से जो है वो तमाम तर तफसीलात आपके साथ रखी गई सुप्रीम कोर्ट की, और सबसे ज़्यादा जो डिटेल्स हैं सुप्रीम कोर्ट में अपडेटेड केस के साथ साथ जो है वो हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपके साथ शेयर किया, और ये भी बताया कि मौजूदा जो अदालती निज़ाम है वो कैसा है और उसमें क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है, इस पर भी हमने थोड़ी सी रोशनी डाली। सबीन शहबाज और मुझे दीजिएगा इजाज़त, कमेंट्स के ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अल्लाह ने के बाद।